Hello everybody, this is Amit Mishra going to explain you some extract in Merchant of Venice Act 3 Scene 2. One part we have already covered where Portia was requesting Bassanio to wait for some more days. Why she was saying so? Because she wants that Bassanio should give her some more time. She wanted that Bassanio should stay at that place for some more time. I told you that when Portia was saying all these things, Bassanio said that I am being tortured. He says that I live upon the rake. I explained you rake on that day. He mentioned I live upon the rake, and on that day I explained you rake. Rake was an instrument used to torture the criminals, where the body used to stretch by tying up. Then Portia says, upon the rake, Bassanio, then confess what treason there is mingled with your love. She's asking, if you are raked, if you are thinking that you are being tortured, then confess what crime is there mingled with your love? What is there in your heart? Mingled means mixed up. Mingled means mixed up. What treason? Treason का literal meaning is गद्दारी, किसी के साथ धोखा करना. What is there mingled in your love? It means your love is not pure. Then Bassanio replies, none but that ugly treason of mistrust. The fact is that in love, if there is no trust, then the love will not be successful. Bassanio is saying the same thing. Bassanio is saying the only treason I am guilty of. He is saying none but that ugly treason of mistrust. This is the most common thing in love. He is saying that the only treason I am guilty of is worrying that I am never going to get to enjoy you. What mistrust? Which makes me fear the enjoying of my love. There is only one mistrust, and that mistrust is that he could leave Portia. He will not be able to marry with Portia. सिर्फ यही mistrust है, यही treason है, सिर्फ यही एक उसको चीज torture कर रही है. क्या चीज? कि if he will be able to choose the right कैस्केट, उसी को उसने ट्रीजन बोला था, उसी को उसने रेक बोला था. उसको लग रहा था जितनी जल्दी ये टास्क उसका फिनिश हो जाए, आफ्टर दैट ही कैन हैव पोर्शिया, ही कैन मैरी पोर्शिया. देयर मे एज वेल बी एमिटी एंड लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर एंड ट्रीजन एंड माई लव. बट उसने आगे बोला कि ट्रीजन, अगर मैं अपने लव की बात करूं, ट्रीजन की बात करूं, देन ट्रीजन is having nothing to do with my love. Treason is having nothing to do with my love. वो बिल्कुल उतने ही अपोजिट हैं. यू कैन सी बिटवीन, जैसे कि एक स्नो एंड फायर में एनमिटी होती है. स्नो एंड फायर कैन नॉट बी टुगेदर. फायर जो होगी वो स्नो को मेल्ट करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगी, वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है. ऐसे ही जो अगर स्नो एक्सेस में है तो उसको फायर को बर्न आउट कर देता है, फायर को ब्लो आउट कर देता है. ठीक हो, वैसे ही जैसे कि एक वाटर और फायर में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, इसी तरह मेरे फ्रेंडशिप में और ट्रीजन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है. वो कभी साथ में नहीं रह सकते हैं. नाउ पोर्शिया सेज, बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रेक. अगेन पोर्शिया उसी बात को रिपीट करती है. क्या? I fear you speak upon the rake, where men enforced to speak anything. What she's saying? I'm not sure. She's saying, I'm not sure. I believe what you're saying. मैम नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि तुम जो कुछ कह रहे हो मैं उस पर ट्रस्ट करने वाले हूं. कह रहे हैं क्यों? उसका रीजन है उसने. She mentions where men enforced, क्योंकि जब लोगों को टॉर्चर किया जाता है तो कुछ भी कह सकते हैं. कह रहे हैं कि जब मैन को एनफोर्स किया जाएगा देन दे कैन स्पीक एनीथिंग. देन Bassanio further he says, promise me life and I will confess the
truth. He is saying that if you will promise me life, promise me, अगर आप मुझे promise करते हो कि you will let me live, then I will confess the truth. Then Portia replies, well, then confess and live. Confess and live. Portia क्या कहती है? Portia reply करती है, all right then, if you are saying that promise my life, then confess and you can live, you can survive. But Bassanio उसको कैसे देखता है? Confess and live, confess and love. Bassanio क्या कहता है? Confess and love, these are keywords. Confess and love had been the very sum of my confession. कह रहे हैं कि आप confess and live की जगह पे what is more appropriate for me? क्या मेरे लिए appropriate है? For me, it is appropriate confess and love. Confess means अपने crime को accept करना, love उसके बाद you can love. Oh happy torment. This is oxymoron. Happy torment. Happy torment. Torment means torture. Torment means torture. यहां पर जब दो अपोजिट चीजें एक साथ यूज की जाती हैं तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरॉन. Oh happy torment. Oh happy torment. He is referring torture as a fun. He is referring torture as a fun. Oh happy torture. He is referring torture as a fun. He is saying, why he is saying so? When my torturer doth teach me answer for deliverance. कह रहा है कि जो मेरा टॉर्चरर, इस केस में क्या, जो मेरा टॉर्चरर है वही मुझे आंसर दे रहा है. My torturer is telling me what I have to say to go free. यहाँ पर तो मुझे खुद ही टॉर्चरर, हुई टॉर्चरर यहाँ पर पोर्शिया के लिए उसने मेंशन किया कि मेरा टॉर्चरर ही बोल रहा है कि व्हाट कैन आई से इफ आई कैन गेट फ्री. अपनी फ्रीडम के लिए मुझे क्या कहना है. बट ही इज सेइंग, ही इज फर्दर सेइंग, बट लेट मी ट्राई माई फॉर्च्यून एंड द कैस्केट. बट मुझे फॉर्च्यून ट्राई करने दो, मेरा फॉर्च्यून ट्राई करने दो आप मुझे. यू शुड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग माई लक. यू शुड अलाउ मी to go there. You should allow me. Bassanio की एक शो कर रहा है कि how much eager he is to go and open the casket. Then there is a long speech of Portia. Portia is saying, go ahead, go away then. What she is saying? Away then. I am logged in one of them. I am logged. What she want to say? I am logged. I am logged means my portrait is locked. My portrait means picture. There is in one of the casket there is my पिक्चर. आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम. मेरी एक पिक्चर है जो तीनों कैस्केट में से किसी में से एक है. इफ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट. अगर तुम मुझे रियली लव करते होगे देन यू विल फाइंड मी आउट. नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड अलूफ. बाकी लोग, हम लोग कैसे रहेंगे? वी विल कीप क्वाइट. वी विल कीप स्टैंडिंग. हम लोग अकेले रहेंगे. स्टैंड अलूफ, ऑल अलूफ. लेट म्यूजिक साउंड वाइल ही डोथ मेक हिज चॉइस. While Bassanio is going to choose the casket, there should be music. Music sound while he doth make his choice. There should be music when Bassanio is going to choose the casket. जब Bassanio casket choose करने जा रहा है उस समय music होना चाहिए. Then if he lose, he make a swan-like end. Swan-like end. Why she is referring swan-like end? Because there will be music. ऐसा बोला जाता है कि जब स्वान जो होता है at अपने लास्ट मोमेंट पे क्या करता है, जब वो स्विमिंग करते हुए जो उसका लास्ट मोमेंट आता है देन ही सिंग ओनली, तभी वो सिंग करता है. तो यहां पर उसने बोला हु इज स्वान. बेसेनियो को उसने स्वान की तरह मेंशन किया है. स्वान लाइक एंड फेडिंग इन म्यूजिक. वो म्यूजिक के साथ में जैसे फेड होता है, सिमिलरली ही शुड ऑल्सो अलाउड टू बी. Why? When? If he loses, in that case, she is saying that if he loses, it will be swan song. एक सॉन्ग का सॉन्ग जैसे हो जाएगा और जैसे म्यूजिक खत्म होगा he will die. उतना ज्यादा उसको लगता है कि अगर बेसेनियो फेल हो गया, if Bassanio will fail, then he will die like a swan. जैसे एक स्वान की एंड म्यूजिक में होती वैसे यहां पर भी होगी. May stand more proper, my eyes shall be the stream. Figure of speech is there. Metaphor. My eyes shall be stream. अपनी eyes को क्या बोल रही है? वो stream में convert कर देगी. Why streams? क्योंकि उसके eyes में tears होंगे. That tears are doing the work of the water bed. उसने mention किया and watery death bed for him. The tears which will come out from her eyes, that will work like the river
फॉर द स्वान। हुई स्वान? बेसेनियो इज स्वान। उसने ये मेंशन किया, मेटाफर यूज किया, उसकी आईज रिवर की तरह प्ले करेंगी। हर आईज विल बी लाइक रिवर। उसमें जो वाटर कहां से आएगा रिवर में, जिसको जो टीयर्स हैं वो अपने टीयर्स को वाटर की तरह रेफर कर रही है। आगे उसने बोला ही मे विन एंड व्हाट इज म्यूजिक देन। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सिर्फ लूज ही करे, ही मे विन एंड व्हाट इज म्यूजिक देन। उस कंडीशन में म्यूजिक क्या होगा? इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी द म्यूजिक? Then music is even as the flourish when true subject bow to a new crown monarch. उस कंडीशन में अगर वो जीत जाता है, अगर वो विनर होता है, then music should be like the majestic trumpet. तो एक बहुत हैप्पी म्यूजिक होगा, एक मैजेस्टिक ट्रम्पेट की तरह म्यूजिक होगा जो कि एक न्यूली क्राउन मोनार्च के क्राउनिंग सेरेमनी के समय किया जाता है। Such it is as are those dulcet sound in break of day. ठीक वैसे म्यूजिक होगा जैसे कि डलसेट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डलसेट, उनका जो साउंड होता है अपने न्यू मोनार्क, न्यू किंग का वेलकम करने के लिए, ठीक वैसे ही म्यूजिक होगा। एंड इट इज as are those dulcet sound in break of day means in the starting of day. उसने यहाँ पे ब्राइड ग्रूम से भी कंपेयर किया, that creep into the ड्रीमिंग ब्राइड ग्रूम्स ईयर। एक्चुअली ट्रेडिशन है कि जो ब्राइड ग्रूम होता है उसको जगाने के लिए, जिस दिन उसका मैरिज डे होता है उसको जगाने के लिए उसको म्यूजिक उसके कान में डाला जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है। ब्राइड ग्रूम के ईयर में जो म्यूजिक होता है, दैट म्यूजिक इज गोइंग टू बी देयर इन हिज आईज एंड समन हिम टू मैरिज। उसको बुलाया, समन मीन्स टू कॉल, उसको बुलाया जाएगा फॉर द म्यूजिक। नाउ ही गोज, वी कैन सी Portia herself is describing, now he goes with no less pretense, with a much more love. In his movement, बेसेनियो के मूवमेंट में उसने क्या बोला? प्रेजेंस नहीं है लेकिन लव है। ही इज मूविंग इन लव, ही इज मूविंग इन लव। प्रिटेंस नहीं है बट विद मच मोर लव, लव की वजह से ही इज मूविंग। ही इज नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी, ही इज वांट टू शो ब्रेवरी, इस वजह से नहीं जा रहा है। ही इज वॉकिंग टूवर्ड द बॉक्सेस, ही इज लुकिंग डिग्निफाइड, he is looking dignified, but that dignity is not because of bravery, that because of love. She next mentions, then young Alcides, when he did redeem the virgin tribute paid by hauling, he is moving as dignified way as Hercules did. वो ठीक हरकुलस की तरह मूव कर रहा है जब उसने प्रिंसेस हेसोइन को बचाया था सी मॉन्स्टर से। एल्सिड ये हरकुलस का दूसरा नेम है। This is the another name of Hercules. Hercules is known as God of strength. उसको एक ब्लेसिंग मिली थी हरकुलस को कि उसको कहीं भी हिट नहीं होगा, सिर्फ उसकी जो नील है, एड़ी है, उस पर अगर कोई हिट करेगा तभी उसकी डेथ होगी। और ऐसे ही ट्रॉय के वॉर में उसको ऐसे ही मारा गया था। हरकुलस ने क्या किया था? हेसोइन क्वीन को, प्रिंस को बचाने के लिए वो गया था वहां पर, क्योंकि उसको किंग ने उसको कुछ प्राइज ऑफर किया था। किंग ने उसको प्राइज ऑफर किया था, इस वजह से गया था। वहां पर कोई लव नहीं था। यहां पर बेसेनियो भी मूव कर रहा है, किसी को बचाने के लिए, पोर्शिया को सेव करने के लिए, पोर्शिया के लिए मूव कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई ब्रेवरी की वजह से नहीं जा रहा है, बट यहां पर लव है। हरकुलस के मूवमेंट में लव नहीं था, वहां पर ब्रेवरी थी, यहां पर लव है, ब्रेवरी नहीं। When did redeem the virgin tribute paid by hauling Troy to the sea monster. I told you this कि sea monster से सेव करना था क्वीन प्रिंसेस हेसोइन को उसको। I stand for sacrifice. I, Portia is referring herself as Hesoin. Portia अपने आप को हेसोइन। I stand, यहाँ पर sacrifice पे कौन है? I am here for sacrifice. The rest aloof are the Dardanian wives. और बाकी लोग क्या हैं? They are Dardanian wives. They are वहां पे उसके जो नेटिव हैं वो लोग हैं, दे आर देयर, बाईस्टैंडर्स हैं। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? विद ब्लियर्ड विसाजेस कम फोर्थ टू व्यू द इश्यू ऑफ द एक्सप्लॉइट। वो सब क्या करने के लिए आए? बस अपने आईज में टीयर्स लिए हुए, दे आर देयर टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। गो हरकुलस, शी हरसेल्फ इज रेफरिंग बेसेनियो एज हरकुलस। गो हरकुलस, लिव दो आई लिव। क्या कहती है? लिव दो I live. If you will survive, then only there are chances of my survival. With much more dismay, I view the fight, then thou take makest the fray. Go Hercules, अगर तुम survive करोगे, if you will be the winner. She is referring, she is saying, if you will be the winner, then only I can survive. जब तुम survive करोगे तभी मेरी life भी है। कह रहे हैं कि she is having a lot of anxiety, बहुत anxious है वो कि उस फाइट का रिजल्ट क्या होने वाला है। विद मच मोर डिस्मे टू व्यू द फाइट देन दो दैट मेक्स द
फ्री मीन्स फाइट, जो फाइट है तुम भी बहुत एक्साइटेड हो सकते हो, लेकिन यहां पर तुमसे ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम लोग के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, हम लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि इफ यू आर गोइंग टू चूज द राइट कैस्केट और नॉट। एक सॉन्ग होता है टेल मी वेयर इज, इस सॉन्ग को बोला जाता है कि सॉन्ग उसको सिग्निफाई कर रहा है, बेसेनियो के बारे में उसको हिंट दिया जा रहा है। सम हिस्टोरियन सेज दैट कि हिंट है टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड। आप देखोगे इसमें लास्ट में ईडी आ रहा है, हेड ब्रेड नरिश्ड, तो शायद एक गेस है लेकिन ऐसा कुछ क्लियर उसके प्रूफ नहीं मिलते हैं। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, टेल मी, फैंसी इज रेफरिंग टू डिजायर। कहां पर डिजायर्स की बर्थ, कहां से डिजायर से स्टार्ट होती हैं? और इन द हार्ट और इन द हेड, ये हार्ट में स्टार्ट होती हैं, हमारे माइंड का क्रिएशन है। हाउ बिगॉट हाउ नरिश्ड, कैसे बिगॉट कैसे क्रिएटेड होती, कैसे सस्टेन करती की, नरिश मतलब सस्टेन करना, कैसे सारी चीजें सस्टेन करती हैं। सारे लोग बोलते हैं यहां पर ऑल रिप्लाई 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 रिप्लाई, तो उसका रिप्लाई क्या आता है? और जो म्यूजिशियंस हैं सिर्फ वही रिप्लाई करते हैं, इट इज एनजेंडर्ड इन द आईज। कहां पर? यहां स्टार्ट होता है आईज में। कहां से? लव इज ऑलवेज स्टार्टेड इन आईज, लव ऑलवेज स्टार्ट्स विद आईज, विद गेजिंग फीट, जैसे देखते हैं, देखने से लव स्टार्ट होता है। एंड फैंसीड आईज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज, और डेथ कहां होती है? जो डिजायर्स जो होती हैं, जो डिजायर जो डाई होती हैं, बहुत ही यंग टाइम में डिजायर्स में डाई, ठीक है। लेट, और उसने क्या बोला? क्रेडल, वही झूला, क्रेडल मतलब बच्चों का झूला होता है, जहां पर मतलब फैंसी इमेजिनेशन, उसी समय डेथ भी हो जाते हैं, जैसे यहां पर जिसकी बर्थ भी होती है। Let us all ring fancy knell, I'll begin it ding dong bell, let's mourn our dead desires। हमें डिजायर्स को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। डिजायर्स जैसे जिस तरीके से क्रिएट होती हैं वैसे खत्म भी होती हैं। लेट्स ऑल मॉर्न, हम सभी लोग मॉर्न करें अपने डेड डिजायर्स पे। और क्रिश्चियंस के जैसा ट्रेडिशन होता है कि एट द फ्यूनरल टाइम दे रिंग द बेल, डिंग डोंग बेल, सभी लोग बोलते हैं डिंग डोंग बेल। और इसी के साथ में यहाँ पर बेसेनियो हैज गॉन इनसाइड, उसके बाद जो सारी चीजें होती हैं, विच कैस्केट बेसेनियो इज गोइंग टू चूज, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट part. Till that time, watch this video, and if you are having query, then call me on my number. Thank you very much.